بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اور اسٹیج پر قابل تعظیم ہمارے علماء کرام، میں کوئی تقریر کرنے کی غرض سے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوں، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے۔ بس چند لمحہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، الگ الگ مناسبت سے دو شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آج ملک کے اندر ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا رویہ برتا جا رہا ہے، اس بات سے ہم سب واقف ہیں۔ اٹھائیے تاریخ کو اور تاریخ کی ہسٹری کو پڑھیے اور تاریخ کی ہسٹری کو دیکھیے۔ سب سے زیادہ جنہوں نے اپنے سروں کو اس ملک کے لیے قربان کیا ہے وہ ہماری قوم ہے، وہ ہماری قوم ہے۔ 1200 کی تاریخ دیکھیے، 1300 کی تاریخ دیکھیے، 1400 کی تاریخ اٹھائیے، 1500 کی تاریخ دیکھیے، 16 اور 17 اور 1800 کی تاریخ دیکھیے۔ 1832 کے اندر بہت بڑا یدھ ہوا تھا، اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صفحہ ہستی کو کھنال کر کے دیکھیے، کس قوم نے سب سے زیادہ اپنا خون بہایا ہے اس ملک کے اندر امن و شانتی قائم کرنے کے لیے، اس ملک کے اندر امن و شانتی برقرار رکھنے کے لیے۔ یہاں سے لے کر کے سب سے زیادہ جو انگریزوں کے مقابل رہے ہیں، تاریخ اٹھا کر پڑھیے کنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ ان تاریخ میں کوئی نہیں ہے، صرف یہی قوم ہے۔ 1857 ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے مدرسوں اور کالجوں کے اندر پڑھنے والے ہم طلبہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا یدھ اور مہا یدھ 1857 کے اندر ہوا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ نہیں، 1857 سب سے بڑا مہا یدھ نہیں ہے، اس سے بڑا مہا یدھ 1832 کا ہے۔ اٹھا کر دیکھیے، تنہا مسلم قوم نظر آئے گی۔ 1857 میں بھی اکثریت ہمارے مسلمانوں کی ہے۔ 1857 کے بعد ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، تب کہیں پر جا کر برادران وطن کچھ نہ کچھ ہماری صفوں کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ آج پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ جو نام ہوتا ہے ملک کی آزادی کے لیے، ہمارے مدرسوں کے اندر بھی، ہمارے کالجوں کے اندر بھی، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھی، ہماری دکانوں کے اندر بھی، ہمارے آفسوں کے اندر بھی جو پروگرام رکھا جاتا ہے، ہمارے پروج، ہمارے بڑے، ہمارے طالب علموں کو بتاتے ہیں، انہیں بھی دو چار نام یاد ہوتا ہے۔ ایک مولانا ابوالکلام آزاد، ایک مولانا جوہر علی، بس ایک مولانا حسین احمد مدنی، ان کے علاوہ کسی اور کو تاریخ معلوم نہیں ہے۔ پتا ہے آپ کو، جامع مسجد کی دیواروں سے لے کر چاندنی چوک کی دیوار تک، اور شاملی کا میدان اور ان کی گلیوں اور ان کے روڈوں اور ان علاقوں کو زمین اور زمین کے ذروں سے جا کر پوچھئے کہ کنہوں نے سب سے زیادہ بلیدان دیا ہے، کنہوں نے سب سے زیادہ اپنے خون کو بہایا ہے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے گا، ہم پورے ذرے کے ذرے اس مسلم قوم کی خون، ان کے پسینے، ان کی ہمت، ان کی جرأت کی گواہی دیں گے۔ یہ ترنگا نظر آتا ہے ہمیں اور آپ کو، اس کے اندر لال رنگ بھی ہے، جو ہے سفید رنگ بھی ہے، ہرا رنگ بھی ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا اس کے اندر سرخ رنگ کیوں ہے، اس کے اندر سفید رنگ کیوں ہے، اس کے اندر ہرا رنگ کیوں ہے؟ ہم میں سے اکثروں کو یہ معلوم ہے، چونکہ اس ملک کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، ہندو بھی بستے ہیں، اس لیے لال رنگ ہندو کی
निशानी है। इस मुल्क के अंदर यहूदी भी बसते हैं, इस मुल्क के अंदर ईसाई भी बसते हैं। ये सफेद रंग ईसाइयों की निशानी है। ये यहूदी जो है, ये यहूदियों की जो पहचान है सफेद रंग। और चूंकि इस मुल्क के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, मुसलमान भी जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए उनकी पहचान ये हरे रंग से हम और आप समझते हैं। यही जानते हैं हम और आप, नहीं मालूम हकीकत हमें और आपको। पता है सुर्ख रंग क्यों है, ये सफेद रंग क्यों है, इसके अंदर हरा रंग क्यों है, हम सबको मालूम है। इस मुल्क के अंदर किसकी हुकूमत चल रही थी? 850 साल, ये 950 साल तक इस रुए जमीन के ऊपर तन्हा मुस्लिमों की हुकूमत रही है। हमारा परचम लहरा करता था, हमारा उरूज था, हमारा मकाम था, हमारी हैसियत थी। पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेकी हुई थी, हमने अपनी हकीकत को भुला दिया। ये शेर हमें चीख चीख कर कहता है, ए मुस्लिम की बच्चियों, ए मुसलमानों के बच्चे, ए नौजवानों, नहीं तेरा नशोमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशोमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। अरे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम्हारा मकाम क्या सिर्फ दुनिया के अंदर कानों के अंदर बालियों रहने का रह गया है? क्या तुम्हारी हैसियत रह गई है तो मोहल्लों के अंदर नाच करके दिखा दो? क्या तुम्हारी हैसियत यही रह गई है तुम अपने हेयर स्टाइल को बदल लो? क्या तुम्हारी हैसियत यही रह गई है तुम अपने हाथों के अंदर कड़ा डाल लो? तुम्हारी हैसियत यही रह गई है तुम रात दिन मोबाइलों के अंदर पड़े रहो? तुम्हारी हैसियत यही रह गई है तुम अपने नौजवान बहनों के पीछे पड़े रहो? तुम्हारी हैसियत रही रह गई है तुम मोहल्लों के अंदर, तुम गांव के अंदर, तुम माशरे के अंदर फितना बर्पा करते रहो? क्या यही तुम्हारी हैसियत है? नहीं नहीं, तुम बाहर निकलो, तुम सोचो, तुम देखो क्या तुम्हारा मकाम था, क्या तुम्हारा उरूज था, क्या तुम्हारी हैसियत थी। आलम इस्लाम की तारीख को खंगालो। अरे तुम तो और कौम ऐसी कौम हो, उस जैसा कौम आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारी हैसियत थी। ये बोरिया नसी, ये मासूम बच्चे आज जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया है, इतना लाजवाब प्रोग्राम, किसी ने तकरीर की, किसी ने नात कही है और किसी ने अपने अपने अंदाज में इतनी शानदार बातें पेश की है, उनको हम और आप मामूली समझते हैं। ये वही बच्चे हैं जो रोडों पर खेलते रहते थे, ये वही बच्चे हैं जो गलियों में और मोहल्लों में ऐसे ही घुमा करते थे। आज उन बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत है, उन बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उन बच्चों के अंदर इतनी आरज़ू तमन्ना है, वो स्टेज पर खड़ा होकर के अपने असातिज़ा किराम के सामने, अपने उलमा की मौजूदगी में, अपने बड़े और पुराना और दादा नाना के सामने रहते हुए इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात की। उनकी ये सलाहियत जो इस बात को बता रही है, क्या बता रही है? इस बात को बता रही है कि मैं मिटा हुआ नहीं हूँ, मेरी हैसियत है, हमारे सीनों के अंदर आग है। हाँ, शर्त यह है कि कोई निखारने वाला पैदा हो जाए, शर्त यह है कोई आए हमारी सलाहियतों को समझे, हमारे दिलों की भड़ास को समझे, हमारे दिलों के अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिलों के अंदर क्या तमन्ना है, आए कोई समझे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा इस मदरसे के जरिए। अल्लाह ने इन बच्चों को जो उनकी तमन्ना थी, जो उनकी आरजू थी, जो उनका हौसला था, जो उनकी हिम्मत थी, जो वो बहुत दिनों से अपने सीनों के अंदर समेटे हुए थे, अपने दिलों के अंदर बिठाए हुए थे, उन्हें वक्त नहीं मिल रहा था, उन्हें वो स्टेज नहीं मिल रहा था, उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि वो आकर अपनी सलाहियत को निखार सके, अपनी सलाहियत को उजागर कर सके। आज मौका मिला है, आपको उन बच्चों ने दिखाया कि देखो उनके सीनों के अंदर क्या मौजूद है। हम और आप ये समझते हैं ये बच्चे ऐसे मामूली बच्चे हैं। हम YouTube पर सर्च करते हैं, आलम इस्लाम से कहीं खबर आती है, हमें नाज होता है वहाँ बच्चों के अंदर क्या सलाहियत है, वहाँ फुला के अंदर क्या कॉन्फिडेंस है। नहीं नहीं मुसलमानों, हमारे और आपके बच्चे जो देहात के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, जो मोहल्ले के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनको बोलने तक नहीं आता है, उनके अंदर भी बड़े सलाहियत है।
उनका उनके दिलों के अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। बस शर्त ये है हम और आप उनकी कदर करें। जब उनकी कदर करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे, वो खुद ब खुद वो चीज़ें सबर कर और सच कर हमारे और आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए ये जो मासूम बच्चे हमें और आपको नजर आते हैं, ये चटाइयों पर बैठे हुए ये बच्चे बहुत कीमती हैं। हमें और आपको हमारी निगाहों में ऐसा लगता होगा ये जो बच्चे बड़े हकीर से बच्चे हैं, न लिबास इनका सही है, न चेहरा इनका सही है। याद रखिए, हम और आप जो इस मुल्क के अंदर सही सलामत हैं, इन्हीं बरिया नशीनों की वजह से है, इन्हीं उलमाओं की वजह से है, इन्हीं के शफाफ कुर्तों की वजह से है। अगर ये हिंदुस्तान में मौजूद ना होते, आज हम और आप हिंदुस्तान में मौजूद ना होते, हमारा और आपका कोई वजूद नहीं होता। तो मैं ये कह रहा था कि इस तिरंगे के अंदर 3 रंग नजर आता है। पहला रंग लाल है, और दूसरा रंग सफेद है, और तीसरा रंग हरा है। इस रंग के अंदर क्या खुसूसियत है, ये तिरंगा हमें क्या पैगाम देता है, हमें और आपको वो समझना चाहिए। तिरंगा, बस इस बात को कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि देखिए, इस तिरंगे के अंदर एक रंग लाल है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, अपनी गर्दन को कटाया था, अपने खून को बहाया था, ये हमारे पूर्वजों की खून की निशानी ये लाल रंग है। ये हमारे पुरखों की और हमारे वीरों की खून की निशानी ये सुर्ख रंग है। तो पता चला हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत खून बहाया है इस मुल्क को सही सलामत रखने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए। ये रंग, ये शहादत दे रहा है तिरंगा का सबसे पहला रंग। जब हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के अंदर अपनी गर्दनें कटवाई थी, अपना खून बहाया था और अपने आप को फना कर दिया था, उनके नीयत में कोई फुतूर नहीं था, उनके नीयत में कोई दौलत करना या हुकूमत पर कब्जा करना उनकी नीयत नहीं थी, बल्कि उनका इखलास साफ, उनका इखलास इतना पाकीज़ा था। ये सफ़ेद रंग ये इस बात को बता रहा है, हमारे बुजुर्गों की सादगी को और हमारे बुजुर्गों के इखलास नीयत को, हमारे बुजुर्गों की इखलास नीयत को अगर देखना है, ये तिरंगा का दूसरा रंग सफ़ेद है। इस तरीके से इखलास में पाकीज़गी थी, ये सफ़ेद रंग उसी की जानिब इशारा है। और तीसरा रंग जो है ये हमें और आपको नजर आता है, ये हरा रंग। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, उन कुर्बानियों में हिम्मत भी था, जोश भी था, हौसला भी था। हमारे बुजुर्गों की जोश, उनकी उमंग, उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत की निशानी ये हरा रंग है। तो पता चला अगर हम और आप इस मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखना चाहते हैं, अमन व शांति को बरकरार रखना चाहते हैं, तो फिर खून बहाने का जज्बा भी होना चाहिए, इखलास नीयत भी होनी चाहिए, और साथ साथ हिम्मत भी होना चाहिए, हौसला भी होना चाहिए और जुर्रत भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें होंगी, फिर हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम होगा, अमन व शांति कायम होगी, और फिर एक दूसरे के हुकूक का लिहाज रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई, इन बातों पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।